हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। जी क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? ठीक है। तो स्टार्ट जी आपके मार्क्स से किया जाए या पहले जो कुछ हमने स्टडी करना है नेक्स्ट, ठीक है, मूव करना है, पहले वो कर लें। ये सर पहले पढ़ लेते हैं। जी ये महक अरूज जी, ये आपकी क्लास फेलो है। यस सर। जी तो इसने अपना जी जो लॉगिन है, जो यूनिवर्सिटी आईडी, उससे क्यों नहीं लॉगिन हुई? सर उससे कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। चलें ठीक है, मैंने एडमिट कर दिया है। जी तो क्या आपने कहा जी कि पहले हम पढ़ लें, उसके बाद आगे जो आपका रिजल्ट है वो बताया जाए। जी जी सर ऐसे। चलें ठीक हो गया जी। इस वक्त जी 30 के करीब यानी 28-29 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। जी तो जो कुछ हमने कल किया क्लियर है जी शिराज और बाकी तमाम क्लास फेलोज को? बताएं क्लास। यस सर। जी चूंकि अक्सर तो मुमकिन है यहाँ यस पे सर। जी चलें जी, इसका मतलब है कि सारे जाग रहे हैं जी। ठीक है। तो जाग के रहना है जी। वैसे ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपने अच्छा स्कोर लेना है मिड में, अगर अभी किसी की कमी पेशी रह भी गई है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कम मार्क्स भी हैं, और तो वो सोच लें कि उन्हें आगे आना क्या करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि फाइनल में अच्छा स्कोर लें और ओवरऑल भी अच्छा ग्रेड बन जाए। जी तो let's move towards the today's lecture. So yesterday we discussed about some of the concepts which are linked with testing of hypothesis. Especially we discussed the most important thing while discussing testing of hypothesis, the steps involved in testing of hypothesis. So always remember there would be 6 steps. First step will always be construction of null and alternative hypothesis. Second step will be level of significance, and level of significance always remember it's the pre-assumed value. ये हमने ना पहले से assume की हुई होती है value, और आपको questions के अंदर अक्सर given होगी, and whenever you will not be given the value of level of significance, always you have to consider it 5%, and we represent level of significance by alpha. And then number 3, test statistic, third step. In test statistic, we have to write down the formula, we have to write down the statistic that will be used to test any particular hypothesis. ठीक है? Or 4th step, computation. In 4th step, simply we have to compute the value of test statistic that will be used in step 3. And in number 5, the most important point, because if you will commit a mistake in critical region, definitely your 6th step decision will also be wrong. So be careful while having critical region, while writing down critical region. So critical region is the 5th step, and last step, 6th step would be a decision. In decision, we have to declare whether our hypothetical value would be accepted or it would be rejected on the basis of sample information. So let's move for the first testing procedure that is related to population mean. तो जिस तरह हमने population mean का confidence interval construct किया था under 3 different situations. So similar 3 different situations are linked with a testing of hypothesis about population mean. ठीक है, तो याद रखें जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन म्यू का कंस्ट्रक्ट किया था, उसमें हमने 3 कंडीशंस के तहत कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बनाए थे। पहली, when population standard deviation known. Second, population standard deviation is unknown but sample size n is large. And third one, population standard deviation अननोन बट सैंपल साइज एन स्मॉल। ठीक है, इन 3 कंडीशंस के मुताबिक हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट किए थे। टुडे व्हाट वी हैव टू डू, वी आर गोइंग टू हैव टेस्टिंग प्रोसीजर to test a hypothesis about population mean under these 3 different conditions.
ठीक है। तो इन 3 डिफरेंट कंडीशंस के मुताबिक हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे पॉपुलेशन मीन की, ठीक है। आज मुमकिन है कि हम सिर्फ पहले को या दूसरे को डिस्कस करें, ठीक है, और जो थर्ड वन होगा इट वुड बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। तो अब आप जी इतनी बात ही समझ आ गई? यस सर। जी ठीक है। कि क्या मैंने कहा है कि हम पॉपुलेशन मीन म्यू का जिस तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट किया था उसमें पॉपुलेशन मीन अननोन था, हमने उसे इंटरवल की फॉर्म में फाइंड आउट किया था, कंप्यूट किया था। आज हम क्या करने जा रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन आपके पास नॉन होगा, गिवन होगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो डाउटफुल होती है, ठीक है। अच्छा, तो हमने उसकी कोई जो वैल्यू है वो हाइपोथेटिकल वैल्यू है या कोई क्लेम है या स्टेटमेंट है म्यू के बारे में, हमने उसे टेस्ट करना है अंडर 3 डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। कि आया पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नोन है, आया पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अननोन है, क्या एन लार्ज है या स्मॉल है, ठीक है। तो पहला जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है? अंडर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सिग्मा इज नोन, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो याद रखें वी हैव 6 स्टेप्स, ठीक है, 6 स्टेप्स हैं आपके पास। जो हमने येस्टरडे टेस्टिंग प्रोसीजर किया था या स्टेप्स हमने लिखे थे वो जनरल फॉर्म में हमने लिखे थे, हमने किसी पॉपुलेशन पैरामीटर का जिक्र वहां पे नहीं किया था। हमने कहा पॉपुलेशन पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, टेस्टिंग प्रोसीजर उसके ये 6 स्टेप्स हैं, और हमने इसीलिए थीटा यूज किया था, हमने कोई पर्टिकुलर पैरामीटर यूज नहीं किया था। बट टुडे वी आर गोइंग टू यूज a particular parameter which is population mean mu, ठीक है। तो आज जो हम हाइपोथेसिस लिखेंगे वो म्यू के रेफरेंस से लिखेंगे, ठीक है, म्यू की वैल्यू के हवाले से लिखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो याद रखें वही 3 किस्म के आपके पास नल हाइपोथेसिस बनते हैं और 3 ही किस्म के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 6 मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। उसमें फर्स्ट टाइप का जो आपके पास नल हाइपोथेसिस हो सकता है वो होगा एच नॉट। देखें एच नॉट के बाद याद रखें हम कॉलन लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एच नॉट हो गया आपका नल हाइपोथेसिस, तो उसे आपने आगे बताना है कि आपका पैरामीटर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और वो किस सिंबल के तहत आप उसे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सो जो पहली टाइप का एच नॉट है वो है म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, यानी पॉपुलेशन मीन की वैल्यू इक्वल टू म्यू नॉट का मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। वो पर्टिकुलर वैल्यू 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1000 हो सकती है। सो एनी न्यूमेरिकल वैल्यू दैट वुड बी लिंक्ड विद म्यू वी आर राइटिंग डाउन इन जनरल फॉर्म एज म्यू नॉट। जी बात क्लियर है जी? यस सर। जी, और जब आपने एक तरफ इक्वल टू ले लिया, अगेंस्ट जो है वो इसका अगर तो कोई हाइपोथेसिस आपको उसका अगेंस्ट दिया हुआ है ग्रेटर या लेस, ठीक है, तो आप वो ले लेते हैं। लेकिन आम तौर पे आप इसके अगेंस्ट क्या लेंगे? नॉट इक्वल्स टू। और नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है जरा बताएं? यानी अगर मैं कहता हूं एच नॉट इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन म्यू इक्वल टू 3, तो अगेंस्ट अगर मैं लिखता हूं h1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मीनिंग क्या है? 3 के अलावा कोई वैल्यू होगी। 3 के अलावा कौन सी हो सकती है? इस देखें इसका मतलब नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है, जरा फिर कोई और भी आप में से जरा बताएं, जरा फिर सोच के बताएं, म्यू इज नॉट इक्वल टू 3। 3 से म्यू की वैल्यू बड़ी हो सकती है या 3 से म्यू की वैल्यू छोटी हो सकती है। तो इसके 2 मीनिंग्स हैं, यानी 2 डायरेक्शंस इसमें कवर हो रही हैं। म्यू मे बी लार्जर देन 3, म्यू मे बी लेस देन 3, ठीक है। तो जब भी इक्वल टू एक तरफ हो और दूसरी तरफ नॉट इक्वल टू होगा, इसका मतलब ये होगा कि म्यू की वैल्यू मे बी इट इज लार्जर और लेस देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। जी क्लियर है जी बात? यस सर। देखें हमने कितनी डायरेक्शंस की बात की है इसमें?
2 डायरेक्शंस। 2 डायरेक्शंस की बात की है, मे बी लार्जर मे बी लेस, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। और जब आप नॉर्मल कर्व बनाएंगे ना, ठीक है, हम देखें बार बार जिक्र करते आए हैं, उसे देखते आए हैं नॉर्मल कर्व, तो उसकी जो अल्फा की वैल्यू होगी, जो सेकंड स्टेप आपके पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, उस अल्फा को, ये टू टेल का मतलब ये है कि आपने अल्फा के 2 पीसेस कर देने हैं। अल्फा बाय 2 राइट टेल पे ले जाना है और अल्फा बाय 2 लेफ्ट टेल पे ले जाना है, ठीक है। ये है टू साइडेड या टू टेल टेस्ट, कि आप नॉर्मल कर्व की राइट टेल यानी जो लार्जर वैल्यू को कवर कर रही होती है और लेफ्ट टेल जो स्मॉलर वैल्यूज को कवर कर रही होती है, दोनों टेल्स आप कंसिडर करते हैं नॉट इक्वल टू के केस में। जी, पॉइंट क्लियर है जी? यस सर। जी। और जो सेकंड और थर्ड टाइप है वो याद रखें, वो आपका एग्जैक्टली इक्वल टू अब नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल टू तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ठीक है। बी में या सी में आपके पास कौन से रह जाते हैं, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो हम बी में फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं एच नॉट इज मे बी म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू एनी पर्टिकुलर वैल्यू। वो म्यू की वैल्यू फर्ज करें 3 है, ठीक है। तो अगेंस्ट इसका क्या हो जाएगा, देखिए ना, लेस देन इक्वल टू 3 तो इधर आ गया, अगेंस्ट क्या बचता है, उसका उलट म्यू ग्रेटर देन 3 या म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, सॉरी, ठीक है जी। इतनी बात जी क्लियर है? यस सर। जी। अब ये देखें, जो हम टू टेल या वन टेल कह रहे हैं ना, ये हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि जो हम साइड टेस्ट करने जा रहे हैं क्या वो एक साइड है या उसकी 2 साइड्स हैं। तो जब हम कह रहे हैं H1 म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो इसमें हम कितनी साइड्स की बात कर रहे हैं और कौन सी साइड की बात कर रहे हैं? सर एक साइड की बात कर रहे हैं और राइट वन साइड की बात। जी जी, एक साइड की हम बात कर रहे हैं और राइट टेल की हम बात कर रहे हैं या राइट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कॉल इट वन टेल या वन साइडेड टेस्ट, ठीक है। और वन साइडेड कौन सा है, ये राइट हैंड साइड का, ठीक है। और जो सी या तीसरी पॉसिबिलिटी नल हाइपोथेसिस की हो सकती है, वो है म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू नॉट, अगेंस्ट इसका उलट हो जाएगा H1 म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। तो अब आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये बात जहन में बिठा लेनी है कि कोई भी आपको हाइपोथेसिस दिया हुआ होगा, आपने उसमें सिंबल्स को देखना है, वहां साउंड किस चीज की है। अगर वहां पे साउंड इक्वलिटी की आपको मिल रही है, दैट वुड बी नल हाइपोथेसिस। और अगर आपको साउंड वहां से नॉट इक्वल टू या ग्रेटर या लेस, ठीक है, ये मिल रही हैं, तो ये आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होंगे, हम नल खुद से फिर बना लिया करेंगे, ठीक है जी। और ये देखें, जब म्यू लेस देन हम कह रहे हैं, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन साइड एंड दैट साइड इज विच वन, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये भी हम क्या कहेंगे, इसे वन साइडेड या वन टेल टेस्ट। तो जो नॉट इक्वल टू होगा, इट वुड बी टू टेल टेस्ट। ग्रेटर या लेस की फॉर्म में जब भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, इसे हम कहेंगे वन टेल टेस्ट। क्लियर जी बात? यस सर। जी। अच्छा, अब एक और जो चीज याद रखनी है वो है, जब आप नॉट इक्वल्स टू कह रहे होते हैं ना, तो जब आप 4 स्टेप में कंप्यूट करेंगे, चौथे स्टेप में, वो हम आगे चल के भी कहेंगे, लेकिन चूंकि बात इसी के साथ लिंक्ड है तो मैं इधर ही कर देता हूं कि जो भी आप टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, वो चाहे जी है टी है, ठीक है, इन 2 में से मैं बात कर रहा हूं, जी या टी में से। तो जब आप नॉट इक्वल टू यूज करेंगे, तो जी की वैल्यू या टी की वैल्यू वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जब म्यू नॉट इक्वल्स टू एनी वैल्यू है, आपने जी टेस्ट यूज किया या टी टेस्ट यूज किया, आपके पास जो कंप्यूटेड वैल्यू जी या टी की आएगी, इट मे बी इट इज पॉजिटिव और मे बी इट इज नेगेटिव। क्योंकि इसमें बात हो रही है टू टेल टेस्ट की, तो टू टेल्स में ये होता है कि जो कर्व है, नॉर्मल कर्व, उसका सेंटर में जी की वैल्यू या टी की वैल्यू, यानी हम ये कहते हैं कि मीन ऑफ जी या मीन ऑफ टी हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो उसमें राइट टेल पे भी वैल्यू जा सकती है पॉजिटिव, लेफ्ट टेल पे भी जा सकती है अगर उसकी जी या टी की वैल्यू नेगेटिव आई। बात क्लियर है जी? यस सर। जी।
अब अगला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बी और सी, जिसमें H1 आपके पास क्या है, म्यू इज ग्रेटर देन, तो आपके पास जी या टी हमेशा क्या वैल्यू आनी चाहिए आपके पास? पॉजिटिव। हमेशा Positive. जी हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। नेगेटिव आने का मतलब ये होगा कि या तो आपने ऊपर हाइपोथेसिस गलत बनाया है या आपने कंप्यूटेशन में कोई गलती की है, ये दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। और जब थर्ड टाइप जिसमें म्यू लेस देन एच नॉट है, ऑलवेज रिमेंबर वैल्यू ऑफ जी और टी वुड बी नेगेटिव, ठीक है, हमेशा नेगेटिव होगी। और नेगेटिव ना होने का मतलब वही होगा कि आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या तो डिजाइन सही नहीं किया या आपने कंप्यूटेशन में मिस्टेक की है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था जी आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज नल या अल्टरनेटिव की, ठीक है। नंबर 2 है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है कि आप हमेशा या तो आपको दिया हुआ होगा, और अगर नहीं दिया हुआ होगा ऑलवेज यू विल कंसिडर इट्स वैल्यू अल्फा इक्वल्स टू 5% एज अ स्टैंडर्ड। तो हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे 5% इसकी वैल्यू यूज कर लेते हैं जी। क्लियर जी? Yes, Yes, sir. sir. और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने कल भी कहा था, यानी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के हवाले से ये याद रखें कि वो स्टेटमेंट, वो क्लेम जो हम टेस्ट करना जा रहे हैं, ठीक है, वो आपका हाइपोथेसिस है। अब वो जो क्लेम है वो आपका नल भी हो सकता, वो आपने उसे दो फॉर्म्स में बनाना होता है, नल और अल्टरनेटिव, ठीक है। आप उस स्टेटमेंट या उस क्लेम को किसी ना किसी शक्ल में जहां इक्वलिटी शामिल है जब बनाएंगे तो ये आपका नल हाइपोथेसिस कहलाएगा, और इसके अगेंस्ट जो भी हाइपोथेसिस बनेगा वो उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक ये है वहां इक्वलिटी किसी फॉर्म में मौजूद नहीं होती, ठीक है। और थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब देखें, कल हमने बात की थी टेस्ट स्टैटिस्टिक में कि वो रूल, वो फॉर्मूला जिसमें हम अपने पैरामीटर यानी अपने पैरामीटर की हाइपोथेटिकल वैल्यू को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चूंकि कल वो जनरल प्रोसीजर था तो हमने बात की थी कि मे बी वी विल यूज जी, मे बी वी विल यूज टी, काई स्क्वायर, एफ, कुछ हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम पर्टिकुलर पैरामीटर विच इज म्यू, हम उसकी बात कर रहे हैं। और म्यू को भी कब, किस कंडीशन के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं? व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नोन। So under this situation, test statistic will always be z equals to x bar minus mu over sigma over square root n। जी, बात क्लियर जी? Yes, sir. अब ये देखें Yes, टेस्ट जी, टेस्ट स्टैटिस्टिक में देखें कौन कौन सी चीजें आपको दी हुई होंगी और कौन सी अननोन होंगी, ठीक है। देखें z इक्वल टू x बार, क्या x बार क्या है? इट्स अ सैंपल मीन। क्या सैंपल मीन आपको दिया हुआ होगा या उसे कंप्यूट करना होगा या क्या होगा? सर दिया भी हो सकता है, कंप्यूट करने के लिए डाटा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा जी कि मे बी यू आर गिवन डाटा। अगर डाटा दिया हुआ तो आप सिंपली सम ऑफ x ओवर n, आप x बार को कंप्यूट कर लेंगे। मे बी यू आर गिवन इट्स वैल्यू, ठीक है, आप उसकी कोई कंप्यूटेड वैल्यू आपको दी हुई है, अगेन नो प्रॉब्लम कि आपको एक सैंपल मीन की वैल्यू दे दी गई। अच्छा, म्यू कहां से आएगा? क्या ये नॉन होगा, अननोन होगा, क्या होगा? सर ये हाइपोथेटिकल वैल्यू। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी कि इट्स अ हाइपोथेटिकल वैल्यू, और ये आपने नल हाइपोथेसिस में लिखी हुई होगी, ठीक है। वो म्यू इक्वल टू 3 है, अगर म्यू इक्वल टू 100 है अगर, तो वो म्यू की वैल्यू यहां पे आपने पुट करनी होगी, ठीक है, ओवर सिग्मा। व्हाट अबाउट सिग्मा? वो सर तो दिया given है. सर दिया होगा। सिग्मा जी, सिग्मा अंडर दिस सिचुएशन यू विल बी गिवन, ठीक है, कि सिग्मा की वैल्यू दी हुई होगी ओवर स्क्वायर रूट n। जी, सर एन भी दिया हुआ होगा। एन भी गिवन होगा, ठीक है। जब सारी चीजें सिर्फ क्या है, आपने प्रॉपर तरीके से टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करनी है। आपको अगर कोई इसमें कंप्यूट करने वाली चीज होगी तो वो सिर्फ x बार हो सकता है अगर डाटा दिया हुआ है, अदरवाइज आपको कई केसेस में x बार भी
गिवन होता है, यानी सैंपल मीन दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सही तरीके से उसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक को अंडरस्टैंड करके यूज करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होती है, ठीक है, चौथे स्टेप में। तो फोर्थ स्टेप, वैल्यू ऑफ z इज टू बी कंप्यूटेड, ठीक है जी, क्लियर जी? Yes, sir. जी। और फिफ्थ स्टेप जो है ये जरा आपको अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि ये है क्रिटिकल रीजन। और क्रिटिकल रीजन देखें, मैंने आपको ऊपर जब 2 टेल या 1 टेल बताया, 2 टेल में मैंने कहा कि जो अल्फा है इट वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अल्फा बाय 2 राइट टेल पे चला जाता है, अल्फा बाय 2 लेफ्ट टेल पे चला जाता है। तो वो जो कॉर्नर्स पे आपके पास अल्फा की वैल्यूज आती हैं, अल्फा फर्ज करें 10% था, तो अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा, 5%। तो 5% आप राइट टेल पे ले जाएंगे और 5% लेफ्ट टेल पे ले जाएंगे। तो याद रखें कि जो डिस्टेंस है, यानी वो जो 5% आपने राइट पे छोड़ा, 5% लेफ्ट पे छोड़ा, तो जो दोनों के बीच का फासला है या एरिया है सेंटर से, तो क्या दोनों एरिया बराबर हैं या अनइक्वल है? इक्वल हैं, ठीक है, बराबर है सर। हाँ जी बराबर हैं। तो जब आप ये देखें, ये जो क्रिटिकल रीजन है ना, यहाँ पर हमने वैल्यू टेबल से देखनी होती है, और वो टेबल ज़ाहिर हम अगर 2 टेल टेस्ट यूज कर रहे हैं तो 2 टेल में ज़ाहिर अल्फा बाय 2 इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि अल्फा के हमने 2 पीसेस कर दिए होते हैं। तो हम जो z की वैल्यू आएगी, वो z की वैल्यू असल में आपकी राइट टेल पे भी होती है, लेफ्ट पे भी होती है, क्योंकि सेंटर से फासला बराबर है राइट पे और लेफ्ट पे, क्योंकि एंड पे 0.05 दोनों साइडों पे छोड़ा हुआ है ना। या अगर अल्फा 1% है तो 0.005 राइट टेल पे छोड़ देंगे और 0.005 लेफ्ट पे छोड़ देंगे। अगेन डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे एरिया फिर बराबर है, ठीक है। तो याद रखें, जब भी 2 साइडेड टेस्ट होगा, जो आप अल्फा के 2 पीसेस करेंगे, सेंटर 0 से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, चाहे आप राइट पे जाएं चाहे लेफ्ट पे जाएं, फासला बराबर होगा, एरिया बराबर होगा। तो जब एरिया बराबर होगा तो जो भी z की वैल्यू आएगी, आप उसे राइट टेल पे भी लिखेंगे, लेफ्ट टेल पे भी लिखेंगे। फर्क क्या होगा, अगर वो राइट टेल पे आपके पास वो 2 आई है, तो लेफ्ट टेल पे क्या होगी, -2 होगी। अगर वो राइट टेल पे 1.645 आई है, लेफ्ट टेल पे क्या होगी, -1.645 होगी। तो सिर्फ उनका डायरेक्शन का फर्क होगा। जब डायरेक्शन का सिर्फ फर्क है तो एक तरफ पॉजिटिव राइट टेल पे और लेफ्ट टेल पे नेगेटिव वैल्यू हम शो करेंगे। जी, बात क्लियर जी? Yes, sir. जी। अब ये देखें, क्रिटिकल रीजन में सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हम बताते हैं कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि जो क्रिटिकल रीजन है ये बनती है किसकी मदद से, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की मदद से बनती है। तो सबसे पहले हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहां पर बताया, इफ h1 म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है, यानी अगर हम 2 टेल टेस्ट यूज कर रहे हैं, देन z एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू से z एब्सोल्यूट। देखे ना, आपके पास ये z कहां से आ रहा है, टेस्ट जी उससे ये आ रहा है चौथे स्टेप से, जहां आपने लिखा है ना वैल्यू ऑफ z इज टू बी कंप्यूटेड, ठीक है, ये 4 स्टेप्स है। और ये z मैंने क्या कहा था कि 2 टेल टेस्ट में क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। अब दोनों हो सकते हैं, देखें, अगर मैंने कहा, अच्छा ये देखें, z को मैंने एब्सोल्यूट कर दिया कि अगर वो नेगेटिव भी है तो हमने उसे पॉजिटिव ले लेना है, अगर वो पॉजिटिव है तो जाहिर है उसे पॉजिटिव भी वो रहेगा, ठीक है। अच्छा, z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन इक्वल्स टू z अल्फा बाय 2, ये z अल्फा बाय 2 वही है जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की कंस्ट्रक्शन में z की वैल्यू यूज की थी। और वो प्रोसीजर आपको पता है कि अल्फा अगर आपके पास 10% है,
अल्फा बाय 2 वो 5% रह जाता है। तो हमने उस 5% को क्या करना होता था, 0.5 में से माइनस कर लेते हैं, और 0.5 में से जब हम उसे माइनस कर लेते हैं, जो वैल्यू बचती है उसे हम टेबल के अंदर सर्च करते हैं, और हमें वहां से जी रो साइड से और कॉलम साइड से दोनों को इकट्ठा करके हमें जी की वैल्यू मिल जाती है। जी, इतनी बात जी क्लियर? यस सर। देखें, हम यहाँ पर दो जी की वैल्यूज की बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जी एब्सोल्यूट, ये कौन सी वैल्यू है, कंप्यूटेड वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी अल्फा बाय 2, दिस वैल्यू इज फ्रॉम जी टेबल। क्लियर? यस सर। जी, अब ये देखें, क्रिटिकल रीजन का मैंने कल एक और नाम बताया था, किसी के जहन में हो? क्रिटिकल रीजन को हम एक और भी नाम देते हैं, कौन सी रीजन? रिजेक्शन रीजन। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन, ये आप दोनों लफ्ज यूज कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास जी की वैल्यू, यानी जी लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है, उससे आगे सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर जी कंप्यूटेड जी टेबुलेटेड से ग्रेटर देन या इक्वल हो जाए, तो ये जी किस में फॉल कर रहा है? देखना, पांचवा स्टेप नाम क्या है, क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन। तो जी अगर कंप्यूटेड लार्जर या इक्वल हो जाए जी टेबुलेटेड यानी जी अल्फा बाय 2 के, तो ये किस में फॉल कर रहा है, रिजेक्शन रीजन में। ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। ठीक है, अब देखें ना, आपने जी अल्फा बाय 2 की जो वैल्यूज आपके जरा जहन में आई थी, मुझे जरा बताएं, जो आपने उस वक्त टेबल से निकाली थी, कोई वैल्यू मुझे बताएं जो आपने उस वक्त कैलकुलेट की टेबल से, तो जरा कोई एक वैल्यू का नाम लें जरा। 1.96। 1.96, ठीक है। फर्ज करें आपके पास जी जो आएगा 4 स्टेप में, ये जी फर्ज करें कोई एक वैल्यू मुझे बताएं क्या आती है। जो जहन में आता है बोल दें जी। चलें जी, 4.1 या 4.9 या 4 कुछ भी है। राइट पे आपने कहा वो 1.96, तो 4 क्या 1.96 से लार्जर है या नहीं है? लार्जर, यानी इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.96, ये स्टेटमेंट सही बन रही है या नहीं बन रही? करेक्ट है। नहीं, करेक्ट है ना जी, रॉन्ग किस तरह है? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.96 ग्रेटर है ना जी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इस स्टेटमेंट के सही होने का मतलब ये होता है कि हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू है जी की, वो 4 है या 4.1 है या 4.9 है, हम उसे कहेंगे इट इज फॉलिंग इन क्रिटिकल रीजन, या इट फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन। और हम क्या करेंगे, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। जी, बात समझ आई? यस सर। जी, अब फर्ज करें कोई जी की कोई और वैल्यू, कोई जी की, देखे ना, जी चाहे 2 हो, दूसरी तरफ क्या है 1.96, तो अब 2 1.96 से क्या ये स्टेटमेंट का आपस में कोई क्या है, कंपैटिबल है या उससे कोई मिसमैच कर रही है? यानी 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.96, क्या स्टेटमेंट में कोई फ्लॉ है या ये स्टेटमेंट ठीक बन रही है? सर फ्लॉ है। हाँ जी, क्या फ्लॉ है जी? 2 इज ग्रेटर देन 1.96 नहीं होता? यस सर, ये करेक्ट है। ठीक है सर। हाँ जी, करेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे अगेन, इसमें भी क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ जी फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, so we reject H naught। अब दूसरी तरफ जी, फर्ज करें Z कंप्यूट होता है आपका 1.5, ठीक है 1.5। अब जरा 1.5 का मुझे बताएं कि 1.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.96। सर ये ठीक नहीं है। हाँ, तो इसे हम क्या क्या कहेंगे? देखें, यही अगर नॉर्मल कर्व आपने बनाई हुई है
तो उसकी राइट टेल पे आपने z की वैल्यू, टेबल वैल्यू क्या लिखी हुई है 1.96, और लेफ्ट पे क्या लिखी हुई है -1.96। आपकी कंप्यूटेड वैल्यू क्या कंप्यूट हुई 1.5, ठीक है। तो वो 1.5 क्या 1.96 से आगे जा रही है या उससे पीछे है? पीछे। पीछे है। आगे जाती तो ये, आगे जाती तो वो क्रिटिकल रीजन में चली जाती या रिजेक्शन रीजन में चली जाती। उससे कम होने का मतलब ये है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में है, ठीक है। जब ये स्टेटमेंट सही नहीं होगी तो हम कहेंगे कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ z 1.5 फॉल्स इन डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन। और जब फॉल नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्सेप्ट h0। जी, बात समझ आ गई? Yes, sir. अब यही अगर फर्ज करें -1.5, अगर यही -1.5 होता तो मैंने क्या कहा हुआ है कि चूंकि 2 साइडेड टेस्ट है, राइट टेल पे आपने टेबल वैल्यू 1.96 लगाई हुई है, लेफ्ट टेल पे -1.96 लगाई हुई है। अब -1.5 वो -1.96 से आगे कहीं जाएगा या उससे पहले कहीं पे आएगा? उससे पहले ही आएगा। उससे पहले आएगा। उससे पहले आने का मतलब क्या है कि कहां वो फॉल कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस में या रिजेक्शन? एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस में फॉल कर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब 2 साइडेड टेस्ट होता है, चाहे वो प्लस में रिजल्ट हो चाहे माइनस में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चूंकि वो प्लस में होगा तो सिर्फ राइट टेल है या लेफ्ट टेल है ना, माइनस में है तो लेफ्ट टेल है। बाकी उसका जो फॉल करने का है वो अगर फर्ज करें 4 है तो वो 1.96 से आगे जा रहा है। वही अगर -4 है तो वो -1.96 से फिर पीछे जा रहा है, यानी क्रिटिकल रीजन में, दोनों सूरतों में क्रिटिकल रीजन में जा रहा है। लेकिन अगर वही z 1.5 या -1.5 है तो दोनों सूरतों में वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये है पहला किस्म का क्रिटिकल रीजन, जो अगर आपने 2 साइडेड टेस्ट यूज किया है तो उसके मुताबिक हम क्रिटिकल रीजन लिखते हैं z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन इक्वल्स टू z अल्फा बाय 2। जी, क्लियर होगी जी? Yes, sir. तो ये एब्सोल्यूट हमने Yes, क्यों sir. लगाया? जी, एब्सोल्यूट हमने क्यों लगाया? एब्सोल्यूट जी इसलिए लगाया कि मैंने अभी जिस तरह बात की है कि चाहे वो प्लस में वैल्यू हो चाहे नेगेटिव हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ रहा था, ठीक है। वो अगर वो रिजेक्शन में जा रहा है तो दोनों सूरतों में वो रिजेक्शन में जा रहा है, प्लस है या माइनस है। और अगर वो एक्सेप्टेंस में फॉल कर रहा है तो दोनों सूरतों में, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस में फॉल कर रहा है। तो हमने क्या किया, बजाय इसके कि हम प्लस वाले को अलग लिखते माइनस वाले को अलग लिखते, हमने दोनों को एक ही के अंदर कवर कर दिया कि z चाहे नेगेटिव है चाहे प्लस में है, ठीक है, हमने उसे पॉजिटिव कर दिया। और z अल्फा बाय 2 ये तो टेबल वैल्यू है आपके पास, ठीक है, वो चाहे 1.96 है या 1.645 है या कोई भी वैल्यू है। जी, क्लियर जी? यस सर। जी, और सेकंड टाइप का जो आपके पास क्रिटिकल रीजन है वो ज़ाहिर है जो आपने ऊपर सेकंड टाइप का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा था उसके मुताबिक कि H1 अगर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट हो। अब ग्रेटर का मतलब क्या है, ये कौन सी साइड की हम बात कर रहे हैं? राइट साइड। हम राइट टेल की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। और राइट टेल में आपके पास z पॉजिटिव होता है या t पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, जी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब आपका म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा, और ये चूंकि हम बता रहे हैं कि ये वन साइडेड टेस्ट है, ठीक है, चूंकि हम सिर्फ राइट टेल की बात कर रहे हैं, राइट साइड की बात कर रहे हैं, तो हम अब आपके पास ये क्रिटिकल रीजन इसकी क्या बनेगी, z ग्रेटर देन z अल्फा होगा। अब अल्फा बाय 2 नहीं होगा चूंकि सिर्फ पूरे का पूरा अल्फा राइट टेल पे होगा, लेफ्ट टेल पे कुछ नहीं होगा। जी, बात क्लियर? Yes, sir. जी, अब ये देखें आप, मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास z ग्रेटर देन z अल्फा है, या आपने ऊपर हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव लिया हुआ है म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो आपका z भी क्या कंप्यूट होगा, पॉजिटिव कंप्यूट होगा। और ग्रेटर देन z अल्फा जाहिर ये आना है टेबल से। अल्फा की वैल्यू अगर आपके पास थी 10%, तो आपने 10% को क्या किया, आपने 0.5 में से 0.10 को माइनस कर लिया, पीछे बच गया 0.40।
0.40 को आपने टेबल के अंदर सर्च किया, साइडों से z की वैल्यू उठाई आपने, ठीक है। अब आपने वो z की वैल्यू z अल्फा की जगह पे नोट की। z जो आपने 4 स्टेप में कंप्यूट किया हुआ था, आपने ये देखना है, फर्ज करें z अल्फा जरा मुझे कोई वैल्यू बता दें, फर्ज करें वो आपने कहा जी कि 1.96 है, हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो z जो है, जो z कंप्यूटेड है, ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये फर्ज करें आ जाता है 1.3 आ जाता है, तो 1.3 क्या 1.96 से लार्जर है? नो। जब स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो कंप्यूटेड z है डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन एंड वी एक्सेप्ट h0, ठीक है। और अगर फर्ज करें ये z आ जाता है 2, ठीक है, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसमें माइनस में नहीं आएगा, ग्रेटर के केस में आपका z कंप्यूट ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। 2 आ जाता है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1.96, तो अब ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। हम क्या कहेंगे, कंप्यूटेड z इक्वल टू 2 फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, सो वी विल रिजेक्ट h0, Reject the hypothesis. जी, ठीक है। और थर्ड जो आपके पास क्रिटिकल रीजन की टाइप बन सकती है, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर है आपके पास h1 म्यू लेस देन म्यू नॉट, और इसके केस में आपकी जो 4 स्टेप में z कंप्यूट होगा वो भी क्या कंप्यूट होगा, माइनस में कंप्यूट होगा। और जब माइनस में वैल्यू आएगी तो उसे कंपेयर भी आपने किस टेल के साथ करना है, लेफ्ट टेल के साथ। बात समझ आई? अगर z कंप्यूट हुआ है माइनस में और 1 टेल टेस्ट है, और कौन सी टेल की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टेल का मतलब क्या है, लेफ्ट टेल। लेफ्ट टेल पे जो z टेबल वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव, ठीक है। तो आपने क्या इसकी क्रिटिकल रीजन बनी, z लेस देन माइनस z अल्फा। आपने जो नेगेटिव कंप्यूटेड वैल्यू आई उसे नेगेटिव टेबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है फिर आपने, ठीक है। और कंपेयर करने का प्रोसेस वही है, फर्ज करें कि -1.96 है z अल्फा की वैल्यू, और दूसरी तरफ आ जाता है फर्ज करें -2, तो आप देख लें कि -2 क्या लेस देन -1.96 है या नहीं है? नहीं है. हाँ जी, -2 लेस देन -1.96 क्या नहीं है? जितनी माइनस की वैल्यू, Yes sir है, but वो उससे आगे लाई करेगा. I mean. जितनी वैल्यू बड़ी होती जाए और उसके साथ नेगेटिव साइन हो, उतनी वो छोटी होती जाती है। देखे ना, -100 है और -1000 है। एक बंदे से आपने 100 रुपए देने हैं, एक के आपने 1000 रुपए देने हैं, ठीक है। तो मकरूज आप किसके ज्यादा हुए, 1000 वाले के या 100 वाले के? 1000 वाले के। 1000 वाले के। तो वो आपकी अमाउंट माइनस होनी है ना, ठीक है। आपके जो पॉकेट मनी है उसमें से 1000 या 100 माइनस होने हैं। तो जितनी वैल्यू बढ़ रही है, अगर वो माइनस निकल रही है, ठीक है, तो उतनी वो छोटी होती जाती है, ठीक है जी। तो -2 इज स्मॉलर देन -1.96, ठीक है। और अगर आप उसे कर्व में भी शो करेंगे ना, तो -1.96 से ये परली तरफ लाई करेगी, -2 अंदर फॉल नहीं करेगा, ठीक है। अंदर तो उससे जो कम वैल्यूज होंगी ना, 1.5 है, -1.5 है, या -1 है, या -1.9 है, ये वो उससे बड़ी हैं, ये उससे लेफ्ट पे फॉल करेंगी, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट के ट्रू होने का मतलब कि हमारी कंप्यूटेड वैल्यू फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन में या रिजेक्शन रीजन में, सो वी विल रिजेक्ट h0। और फॉल ना करने का मतलब कि हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे जी। क्लियर जी? Yes sir. और छठे स्टेप में जी डिसीजन में हमने यही चीज लिखी है, इफ द वैल्यू ऑफ z फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन वी रिजेक्ट h0। हम h0 को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज इट वुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है Yes sir. जी। तो अब जी मैं आपको 7 मार्क्स बता देता हूं, या अगला क्वेश्चन पे हम जाएं? सर बता दो. आप आप लिस्ट सब. भेज दीजिए। लिस्ट फिर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कोई हाफ बन गई है तो जैसे ही बन जाएगी मैं फिर क्लास के बाद आपको ना शेयर कर दूंगा, ठीक है जी सर, ऐसे ही। चलें, ठीक है।
तो यानी सबके सामने जो है मार्क्स नहीं आप सुनना चाहते? यस सर। चलें जी, भरम इसी तरह रहने दें। चलें जी, ये जी क्वेश्चन जरा देखें। वॉल स्ट्रीट सिक्योरिटीज फर्म्स पेड आउट रिकॉर्ड ईयर एंड बोनसेस ऑफ 1,25,500 पर एम्प्लॉय पर 2005। कहते जी वॉल स्ट्रीट सिक्योरिटीज फर्म ने अपने एम्प्लॉयज को, हर एम्प्लॉय को 2005 में कितना बोनस दिया? 1,25,500। ये क्या वैल्यू है? X bar. जी, ये एक्स बार कैसे पता चला जी ये एक्स बार है? एक्स बार होता है सैंपल मीन, और सैंपल मीन होता है किसी सैंपल से आता है। और सैंपल कैसे आता है कि वॉल स्ट्रीट सिक्योरिटीज फर्म के अंदर अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं, उन 1000 में से उसने 50 लोगों का सैंपल ले लिया, उनकी जो पर एम्प्लॉय जो पेमेंट हुई, अगर वो इस तरह की बात होती तो वो होता सैंपल मीन, एक्स बार होता। यहाँ तो कोई सैंपल की बात ही नहीं की। उसने कहा जी कि इस फर्म ने ओवरऑल 2005 में पर एम्प्लॉय 1,25,500 पे किया है, उन्हें दिया है बोनस जी। सही नहीं होगा आई थिंक। ये जी म्यू की वैल्यू है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक दावा है उस किसका? वॉल स्ट्रीट सिक्योरिटीज फर्म का, कि हमने जी ये इतने पैसे हर एम्प्लॉय को, अब ये पर एम्प्लॉय, किसी को हो सकता है ज्यादा दिए होंगे, किसी को कम दिए होंगे, लेकिन ऑन एवरेज इतने पैसे उन्होंने दिए हैं। बात समझ आई? Yes, sir. जी। यस सर। सपोज वी वुड लाइक टू टेक अ सैंपल, अब देखें बात सैंपल की शुरू हुई। सपोज वी वुड लाइक टू टेक अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉयज टू सी वेदर द मीन्स ईयर एंड बोनस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्टेड मीन ऑफ 1,25,500। कह रहे जी कि हम एक सैंपल लेके ये चेक करना चाहते हैं कि जो उस सैंपल से मीन आएगा क्या वो 1,25,500 से डिफरेंट है, ठीक है, फॉर द पॉपुलेशन। सपोज a sample of 40 employees showed a sample mean year end bonus of 1,18,000। कहते जी हमने 40 एम्प्लॉयज का एक सैंपल ले लिया उस फर्म के, और उनका जो मीन निकला, सैंपल मीन निकला, वो 1,18,000 निकला। फर्म का दावा क्या था? 1,25,500। अब जो निकला ये 40 एम्प्लॉयज की मदद से 1,18,000। अज्यूम अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30,000। जो वेरिएशन था, अमाउंट ऑफ वेरिएशन थी, देखे ना, किसी एम्प्लॉय को ज्यादा 2 लाख मिले, किसी को 1.5 लाख मिले, किसी को 75,000 मिले, तो जो वेरिएशन था बीच में वो कितना था? 30,000 का वेरिएशन था। अप्स एंड डाउन्स थे, मीन्स के मीन वैल्यू से जो अप्स एंड डाउन्स थे वो कितने थे? 30,000 के। टेस्ट द डिजायर्ड हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैंने आपको कहा था कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको अक्सर दिया हुआ होगा, और अगर ना दिया हुआ हो तो आपने खुद से हमेशा 5% अज्यूम कर लेना है जी। बात चीज क्लियर है? ये सारी स्टेटमेंट? यस सर। यस अब सर। ये देखें, आपको उसने पॉपुलेशन मीन म्यू दे दिया है, कितना दे दिया है? 1,25,500, ठीक है। कहते जी हम इसे टेस्ट करना चाहते हैं कि 40 एक सैंपल लेके कि क्या ये जो मीन है 1,25,500 और जो वो सैंपल का मीन आएगा वो क्या इससे डिफरेंट है? तो आपका नल हाइपोथेसिस तो हो गया 1,25,500, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लेंगे इसका? नॉट इक्वल्स टू, देखा ना उसने कहा था ना, इज डिफरेंट फ्रॉम, वो उसने कहा था ना, मीन्स ईयर एंड बोनस इज डिफरेंट फ्रॉम रिपोर्टेड मीन ऑफ, ठीक है। तो ये जी आपने सबसे पहले स्टेप में नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिजाइन किए। एच नॉट आपने ले लिया म्यू इक्वल्स टू 1,25,500। अगेंस्ट आपने ले लिया कि 1,25,500 नहीं है, इससे या लार्जर हो सकता है या इससे स्मॉलर हो सकता है, ये बात, ठीक है। तो ये क्या बना? टू टेल टेस्ट या टू साइडेड टेस्ट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने लिया अल्फा 5%। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक। आपको चूंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन था, इसमें गिवन था
आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या यूज की, z इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। आपके पास जी कंप्यूटेशन में n 40 गिवन था, सैंपल मीन 1,18,000 गिवन था, पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन सिग्मा 30,000 गिवन था। आपने वो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर ली, जी में पुट की, कंप्यूटेड वैल्यू आपके पास आ गई -1.58। अब देखें कि क्रिटिकल रीजन 5वां स्टेप, और मैं आपको पहले बता चुका हूं क्रिटिकल रीजन हमेशा बनती है आपके H1 के मुताबिक। तो हमने पहले यहां पर लिखा एज H1 म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 1,25,500। सो जब b नॉट इक्वल्स टू होगा हमेशा क्या यूज करेंगे, z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन इक्वल्स टू z और अल्फा के 2 पीसेस कर देंगे यानी अल्फा बाय 2। ठीक है, तो हमने z एब्सोल्यूट के अंदर वो वैल्यू z की पुट की -1.58 ग्रेटर देन इक्वल्स टू z अल्फा पुट किया 0.052 पे डिवाइड किया। तो जब आप z टेबल से इस अल्फा और अल्फा बाय 2 के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे, यू विल गेट अ वैल्यू 1.96। आपके पास लेफ्ट साइड पे वो एब्सोल्यूट के बाद वैल्यू क्या बनी 1.58। क्या 1.58 लार्जर है 1.96 से? नो सर। नो जी, ठीक है। No, sir. तो क्या है, ये उससे लार्जर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ z -1.58 डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो वी विल एक्सेप्ट h0। तो हम h0 को एक्सेप्ट कर लेंगे Except Y and purposes. conclude that there is no significant difference is observed in sample mean। ठीक है, तो इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आप बेशक उसे ना करें, लेकिन इस हद तक जरूर करें कि आपका डिसीजन फाइनली बना गया है, आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। जी क्लियर है जी ये सारा? ठीक है, Yes, sir. तो इससे Yes, जी हम sir. फर्दर Yes, मजीद sir. आगे आना जी करेंगे ताकि आपको सारी चीजें जरा क्लियर होती जाएं। ठीक है, तो यहीं पे जी हम वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह जी कल के लेक्चर के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.